سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاک ویو سٹی ہاؤسنگ سکیم ماسٹر پلان کی خلاف ورزی پر بنائی گئی ہے۔ ویژن ڈیولپرز نے ریور ایج کے نام سے فیز 2 بغیر منظوری لانچ کیا۔ روڈا کی فیکٹ رپورٹ کے مطابق ایل ڈی اے نے 11 ستمبر 2012 کو سکیم پر میگا آپریشن لانچ کیا۔ سب سے پہلے ایل ڈی اے نے پاک ویو ایکس ریور ایج کو غیر قانونی لسٹ میں شامل کیا۔ ایل ڈی اے ٹیم پر برہنہ کر کے تشدد کرنے پر ڈیولپرز پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ ویژن ڈیولپرز کے نام سے 2 ارب 60 کروڑ کے ایگریمنٹ کے ذریعے بیچی گئی۔ ایل ڈی اے نے اسکیم کا غیر قانونی پھیلاؤ روکنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے در نایاب۔ جی در نایاب، بتائیے گا، بغیر منظوری کے اسکیم لانچ کر دی گئی، رپورٹ سامنے آ گئی ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں اور کارروائی کب کی جائے گی؟ جی بالکل، فیکٹ فائنڈنگ کے مطابق تو 2011-12 میں سب سے پہلے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایکس ریور ایج جس کا نام تھا اس کو پہلے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا، اور اس میں بہت سارا جو پھیلاؤ تھا جس میں تقریباً 7,000 تک اب تک پھیلاؤ ہو چکا ہے اراضی کا، 7,000 کنال کا، اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا اور مختلف بلاک پہ کارروائی بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایل ڈی اے کی ٹیم کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف تشدد ہوا بلکہ کچھ افسران کو ایل ڈی اے کے ٹاؤن پلاننگ کے ان کو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے ڈپارٹمنٹ کے ان کو مارا بھی گیا، اور برہنہ کر کے مارنے پر اس پر مقدمہ درج کیا گیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ کس طرح سے ویژن ڈیولپرز نے یہ زمین حاصل کی، اور اس کے بعد 2.6 جو ارب ہے اس کے مطابق یہ زمین بیچی گئی پنجاب ڈیولپمنٹ فنڈ ڈپارٹمنٹ کو، جس سے بعد میں نیب نے تحقیقات بھی سٹارٹ کی، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس پہ ڈیولپرز کو نیب کے کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑا، 3 دفعہ نیب نے نوٹس بھی دیے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ دریائے راوی کی پٹی پر ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ دوسرا، اس پہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کا جو ہے پوائنٹ اٹھایا گیا، جس میں ماسٹر پلان 2001 کا جو ویژن تھا 2025 تک کے لیے جو بنایا گیا تھا اس میں یہ فلڈ زون ایریا میں تھی، اور قانون کے مطابق فلڈ زون ایریا میں کوئی رہائشی سوسائٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ اس پہ بھی ایلیگل ڈکلیریشن کی گئی۔ اب سے اگر دیکھا جائے پچھلے مہینے بھی روڈا نے ایک کارروائی کی، کیونکہ اب یہ زمین روڈا کی حدود میں آ چکی ہے۔ روڈا نے نہ صرف اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے بلکہ انہوں نے سرکاری طور پہ اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہو سکتا، اس کا پھیلاؤ روکا جائے گا۔ لیکن گزشتہ مہینے جب روڈا نے اس پہ کارروائی کی تو ان کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ روڈا کے 3 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی بھی ٹیم کو ہراساں کیا گیا، ان کی گاڑی توڑ دی گئی، اور اس کا بھی مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ اب روڈا اس حوالے سے بھی مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے اور باقاعدہ جو کارروائی ہے اس کا بھی آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ در نایاب، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک شخص دن رات بد دعائیں کرتا رہا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ایک شخص جیسا جھوٹا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سابق وزیر اعظم جلسوں میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معاشرے میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت اور انتشار کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے، لیکن حضرت کی دعاؤں سے، قوم کی دعاؤں سے اور شعور سے اور محنت سے ہم نے وہ مرحلہ بہت اچھے انداز میں طے کیا۔ اس معاشرے میں جو زہر گھول دیا گیا ہے، اس معاشرے کو جس طرح تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر شریف آدمی کی بےعزتی کرنی ہے، آپ نے گالی سے آپ نے اپنی بات شروع کرنی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ برطانیہ میں، چاہے وہ سعودی عرب میں یا امریکہ میں، اور اس طرح آپ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ لیکن میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرشکوہ ہجوم دیکھ کر میں یہ بات، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اس راستے کو بند کریں گے اور ایسے نظام کو آپ ختم کریں گے۔ جس مشکل ترین حالات میں، اس مخلوط حکومت میں ہم نے
जिस सोच के साथ और जिस अज़्म के साथ हमने ये इक़्तिदार संभाला, ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों भरा सफ़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प मुकालमा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की दुआओं से मईशत बेहतर हो रही है, हजरत एक और फूंक मारें ताकि मजीद बेहतरी हो। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का इंदिया दे दिया। जो कशीदगी है, जो आलमी महंगाई का ये दौर है, तो फिर क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, ये पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए। मुलाजा कीजिएगा, मैंने फूंक की बात की है, जादू टूने की बात नहीं की मैंने। कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई, अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें। वैसे अगर हजरत एक ख़ास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा बिल्कुल, और वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूंक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान का आइन मुतफ़िक़ा है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई आइन पास नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि जमहूरियत हमारे आइन की बुनियादी असास है, कि हमारे आइन का असास इस्लाम है। आइन कहता है इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी होगी और कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। दूसरा असास जमहूरियत है, यहां डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, यहां पर जमहूरी निज़ाम होगा जिसमें अवाम की शराकत का तसव्वुर होगा। इमरान खान दोबारा सिलेक्ट होकर आना और आमिर बनकर अवाम पर हुक्मरानी करना चाहता है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपने दौर में एक टके का काम नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर कारी वार। कहा, इमरान खान ने झूठे बयानिए को गली गली पहुंचाने की कोशिश की। अवाम को 4 साल में समझ आ गया तब्दीली का नारा तबाही है। अवाम से अपील है कि ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कामयाब करके खिदमत का मौका दें। कि जमहूरी जद्दोजहद उस दिन से शुरू नहीं हुआ जब से हमने पहली बार एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपने दफ्तर से भगाया। पाकिस्तान के एक तवील तरीन जमहूरी जद्दोजहद है जिसके साथ खान साहब मजाक कर रहा है इस वक्त। आई मीन लिटरली इतना ही मुनाफिकत कि वो क्या समझता है कि हमारा मेमोरी सिर्फ अप्रैल 2022 से शुरू हो जाता है। उससे पहले हम भूल गए हैं कि 3-4 साल तक वो सेम पेज का रट लगाया हुआ बैठा था। ये वही वज़ीर आज़म नहीं था जहाँ ना सिर्फ वो सियासतदान जो रेड लाइन क्रॉस करके गिरफ्तार हो रहे थे, ये वो वज़ीर आज़म था जो अपना वज़ीर आज़म घर में बैठ के अपना शौक पूरा करने के लिए हुक्म देता था कि ये जर्नलिस्ट को पकड़ो, इस जर्नलिस्ट को पकड़ के मारो, पीटो, इसलिए मेरे ख़ानदान के मेरे दोस्तों के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। ये वही आमिराना सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाह रहा था, जो 18वीं तरमीम को फाड़ के पूरा पाकिस्तान को वज़ीर आज़म का दफ्तर से चलाना चाह रहा था। ये वही इमरान खान है जिसकी वजह से हमारा मीडिया की आज़ादी को इतना नुकसान पहुंचाया गया है। ये वही इमरान खान है जिसने इस मुल्क के अवाम की जमहूरी हुकूक और मुआशी हुकूक पे डाका मारा, और अब वो समझता है कि वो झूठ की बुनियाद पे सियासत कर सकेगा। वो ये कोशिश कर रहा है कि झूठ की बुनियाद पे फसाद फैलाया जाए, और इंशाअल्लाह ताला इसका कोशिश नाकाम रहेगा। जितना नुकसान पाकिस्तान ने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को बर्दाश्त करने में जितना नुकसान हुआ है, हमारा मईशत को, हमारा ख़ारजा पॉलिसी को, हमारे अपने मुल्क को, वो हमारे सामने है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है अमरीकी सदर के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है, अमरीका के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाएंगे, अमरीकी सफ़ीर को तलब करके बाइडन के बयान पर डी मार्च करेंगे। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कवानीन के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। जहाँ तक सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान काफ़ी ममालिक के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था। We have summoned the ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. Jahan tak, as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our assets. साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि अमरीकी सदर का बयान मुल्क की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से आया है। हमारे वज़ीर आज़म और वज़रा अमरीकी सदर के आगे लेटे हुए हैं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि सवात में अमन चाहते हैं। अमन और अमान के हवाले से पॉलिसी सूबा नहीं रियासत बनाती है और रियासत की कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमारे दौर में भी रियासत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, सिर्फ ब्रीफिंग हुआ करती थी। असद कैसर ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रोग्राम रात 8:03 पर नशर होगा। ये आप देखें कि हमारी नाकाम खारिजा पॉलिसी है। एक तरफ आप जो है ना अमेरिकी में लेटे हुए हैं, बैठे नहीं बल्कि लेटे हुए हैं। आपकी पूरी कैबिनेट, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, जितने इदारे हैं वो तमाम अमेरिका में बैठे हुए नहीं लेटे हुए हैं। और वहाँ फिर भी जो बयान आता है तो वो हमारे दुखों का मुदावा नहीं करता। पॉलिसी जो है ना बनाती है वफाक, और बाकायदा हमारी ज़रूरत है कि वफाकी हुकूमत जो है ना ऑफिशियली हमारे साथ इंगेज करे और पॉलिसी के हवाले से जो है ना हम ऑन बोर्ड रखें कि वो क्या करना चाहते हैं। हमें इस वक्त कोई पता नहीं है कि वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसी। मैंने आपसे प्राइवेटली पूछा कि बताओ क्या पॉलिसी, हमें कोई पता नहीं है। हम अमन चाहते हैं, बस हमारा सिर्फ एक बात है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अमन हो। इससे पहले क्या पॉलिसी थी? इससे पहले तो अभी कोई पॉलिसी डिस्कशन तो हो रही थी, कोई पॉलिसी तो फ्रेम नहीं हुई थी उस वक्त। हम इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और मैं आपको ये गारंटी करवाना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है ना हमारे साथ डेट तय करे और इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन कब करनी है, असम्बली कब तोड़नी है। हम जो है ना पार्लियामेंट भी वापस जाने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, और हम इस पर कोई बहुत ज़्यादा शराइत नहीं रखते। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, फिर जिसके पास भी मैंडेट हो वो उस मुल्क को मसाइल से निकाले। उसके पास एक मॉरल अथॉरिटी भी होगी और वो अच्छी तरीके से इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर ख़ारजा तलब करने का फैसला कर लिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन के बयान पर अमरीकी सफ़ीर से वजाहत तलब की जाएगी। अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान की जानिब से एक एहतजाजी मरासला भी थमाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें कुछ अपडेट्स कर लें कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को अब से 3 दिन पहले दफ्तर ख़ारजा में तलब कर लिया गया है। और ये तलबी इस वक्त जो सुबह से ही गर्दिश करती खबर है अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से गैर ज़रूरी बयान के हवाले से, उसकी हवाले से तलबी की गई है। और इस तलबी में सेक्रेटरी ख़ारजा जो कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं कायम मुकाम जौहर सलीम, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और जौहर सलीम सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक मरासला भी उन्हें थमाया है जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया है इस गैर ज़रूरी बयान के हवाले से, और इसमें मजम्मत की है
कि इस नौयत का जो बयान है वो नहीं दिया जाए। सफारती ज़राए का ये भी कहना है कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान ने ये भी बावर करवा दिया है कि तमाम तर पाकिस्तान के जो जोहरी एटमी असासे हैं इस वक्त महफूज हाथों में हैं और पाकिस्तान एक संजीदा मुल्क है और उसको इस नौयत का भी पता है और इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से शदीद इस वक्त मजम्मत की गई है इस बयान की। और अभी भी जो अमेरिकी सफीर हैं वो दफ्तर ठीक खारजा है, में। बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क आपका। असेंबली इलेक्शन की भरपूर तैयारियां, फैसला कल होगा। कौमी असेंबली के 8 और पंजाब असेंबली के 3 हलकों में कल मैदान सजेगा। 7 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इंतखाब के हलकों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती होगी। कराची के हलकों NA 237 और NA 239 में इंतखाबी सामान की फराहमी और इलेक्शन की तैयारी की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। NA 237 में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली और उसके अलावा NA 239 में हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन मौजूद हैं। सबसे पहले आजिज़ आपका रुख करेंगे, आप बताइएगा क्या तैयारियां यहाँ पर जारी हैं और पोलिंग एजेंट्स के हवाले से भी बताएगा और जो कैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं क्या उनका कहना है, कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है कल के इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये कौमी असेंबली का हल्का है NA 237 जिसके इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। 194 पोलिंग स्टेशंस हैं इस हल्के में और तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस पे सामान पहुँच चुका है, अमला पहुँच चुका है और सिक्योरिटी के लोग भी पहुँच चुके हैं। कुछ मसाइल आ रहे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशंस में बिजली का मसला है, कुछ पोलिंग स्टेशनों पे वॉशरूम्स का मसला है, ऐसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया बता रही है कि कल सुबह तक ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर मैं इस हल्के की आपको बात करूँ तो ये एक वसी हल्का है और इस हल्के पे PTI के इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच उम्मीदवार हैं, जो इस इलाके के मकामी भी हैं और इस इलाके में असर रसूख भी रखते हैं और माजी में कई बार यहाँ से MNA और MPA मुंतखब भी हो चुके हैं। इसी हल्के पे अगर पोलिंग एजेंटों का जो सवाल है, 194 पोलिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन 748 पोलिंग बूथ हैं। तो हर पोलिंग बूथ पे एक पोलिंग एजेंट होता है, तमाम जमातों के एजेंट होंगे। इस तरह दीगर तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल हैं। लेकिन अब इस पे अहम सवाल बहरहाल वोटर्स का होगा। ये ज़मीनी इलेक्शन है और ये मलीर का ज़िला है। जिस पार्टी का ज़्यादा वोटर निकलेगा वही उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा, वही उम्मीदवार यकीनी तौर पे कामयाब होगा क्योंकि वोट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आजिज़ आप हमारे साथ ही रहेगा। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताएगा यहाँ पर आप कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तैयारी के हवाले से बात की जाए कराची के हल्का NA 239 में तो गुज़िश्ता दिनों हमने कवरेज भी करी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और इसी तरीके से दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी वो ज़ोरों शोर से जा रही थी। अब जो है आखिरी मराहिल में जो है इंतखाबी जो मरहलेवार जो होते हैं उनके आखिरी जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है मैं हल्का NA 39 में मौजूद हूँ और ये गवर्नमेंट कॉलेज सुपीरियर कॉलेज है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स जो है पहुँचा दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करूँ हल्का NA 239 में तो 330 जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं उसमें बताया गया है कि हल्का NA 237 और हल्का NA 239 में 5144 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि साथ साथ हर पोलिंग स्टेशन पर 10 पुलिस एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे और यहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरास भी जो है नस्ब किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो है इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो जो है निगरानी करेगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन और आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो पैगाम जारी किया है। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल होने वाले मलीर के हल्के
NA-237 पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच को वोट देने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने 4 साल मलीर के अवाम पर डाका डाला। इतना में 16 अक्टूबर पे बाई इलेक्शंस के ऐलान हो चुके हैं और जहां मैं खुद कैंपेन के लिए नहीं आ सका हूं, इसका ये नहीं मतलब कि मैं नहीं समझता हूं कि ये इलेक्शंस अहम नहीं है। ये बाई इलेक्शंस बहुत ही अहम है। मलीर के बाई इलेक्शंस मलीर के अवाम के लिए बहुत ही अहम। 2018 में एक नालायक, नाअहल, नाजाहिज वजीर आजम को सिलेक्ट करवाने के लिए मलीर के अवाम के वोट पे डाका मारा गया और यही वजह है कि 4 साल से वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 टका का काम नहीं करवाया गया। मेरा उम्मीदवार हकीम बलोच साहब को मुंतखब करवाएंगे ताकि हम मिलके आपका खिदमत कर सकें। मैं समझता हूं कि 1 साल में मलीर के लिए बहुत ही काम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें इजाफा हो ताकि ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकें। सवात की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मैंगोरा में ग्रैंड जरगा हुआ। ग्रैंड जरगे में IGFC नॉर्थ, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा शरीक हुए। ग्रैंड जरगे के शुरका ने हुकाम की यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी और अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आपको बताएं कि सवात की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मैंगोरा में ग्रैंड जरगा हुआ। ग्रैंड जरगे में IGFC नॉर्थ, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। ग्रैंड जरगे के शुरका ने हुकाम की यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी और अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। IGFC नॉर्थ और चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा ने इस जरगे में शिरकत की है। ग्रैंड जरगे में सवात, बुनीर, शांगला की सियासी क़यादत भी शरीक हुई। ग्रैंड जरगे में असातिज़ा, तलबा, उलमा और मकामी उमायदीन भी शरीक हुए। ग्रैंड जरगे की सिक्योरिटी और अमन बरकरार रखने की यकीन दहानी भी कराई गई है। सवात की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मैंगोरा में ग्रैंड जरगा हुआ। ग्रैंड जरगे में IGFC नॉर्थ, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा शरीक हुए। ग्रैंड जरगा के शुरका ने हुकाम की यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी और अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म बोले कि गुज़िश्ता दहाइयाँ सबूत हैं कि पाकिस्तान इंतहाई ज़िम्मेदार जौहरी रियासत है। जौहरी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फूल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। जौहरी हथियारों की सलाहियत से मुतालिक पाकिस्तान ने हमेशा नहायत ज़िम्मेदाराना किरदार का मुज़ाहरा किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नाबीना अफराद को सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर कंप्यूटर लैब का तोहफा दिया गया। लैब का इफ्तिताह MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा ने किया। किश्वर ज़हरा का कहना था कि इस माशरे में नाबीना और खुसूसी अफराद की हैसियत तस्लीम करने की ज़रूरत है। अपनी सोसाइटी से दरख्वास्त करूँगी कि इनकी हैसियत को कबूल कीजिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इस कैटेगरी को बिल्कुल नॉर्मल लोगों से अलग करके रख दिया गया, जबकि इनमें बहुत सारे दोस्त हु आर मेंटली साउंड हैं, जो नहीं भी मेंटली साउंड है वो भी कंपनी जो आते हैं। तो इन्हें हमें ये वाहिद इदारा है जहाँ पे मैंने नाबीनाओं को या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बीमार हैं या कुछ हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश भी की जाती है। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि इलेक्शन कमीशन नहीं लेकिन किसी हद तक हुक्मरान इन खुसूसी अफराद के कवानीन में रुकावट का सबब है। मैं ये समझती हूँ कि जिसकी जो भी महरूमी है, ये खुदा का पैगाम हमारे और आपके लिए है कि तुम क्या करोगे इनके लिए, क्या कर सकते हो, क्या तुम इनकी बीनाई बन सकते हो, क्या तुम उनकी पैर बन सकते हो। कंप्यूटर लैब का कयाम नाबीना अफराद की कोशिशों का सबब बन गया। जो भी हम सीख सकेंगे आम आदमी की तरह और उससे हम फ़ायदा उठा सकेंगे और जिस तरह आम आदमी काम करते हैं उस तरह हम अपने आप को मनवा सकेंगे उस काम के अंदर। मेरे लिए तो कम से कम मैं समझूंगी कि बहुत करीब है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे CP डिपार्टमेंट में बच्चों को देखती भी हूँ, वो मेरा एक अलग प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पे अब ये होगा कि मैं आराम से इजीली कंप्यूटर सीख सकती हूँ। कुव्वत बिनाई से महरूम कंप्यूटर लैब के टीचर नवीद ने बताया कि जायज सॉफ्ट की मदद से नाबीना अफराद बासानी कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर क्या होता है कि जो न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त